Assalamu alaikum teachers. Today I'm going to tell you how you are going to make the attendance form and how you are going to post the attendance form in the classes. And after checking, you are going to check the attendance of the student. So मैंने Google Classroom जो है उसको पहले ही ओपन कर लिया है. So this is my Google Classroom and there are so many classes in the Google Classroom. After the classes, I'm going to click on any class. For example, I want to make a form for attendance form for grade 4. So this is grade 4, and after making the attendance form for grade 4, after opening the class, I'm going to click on the classwork. Click on the create button. Create button, there are so many options: assignment, quiz, question, and material, and reuse, post, and topic. So there are so many things. So you can make an assignment form जो आपका होगा, you can make as an assignment, as an quiz, or as a material. So whatever you want to make, just click on that one. After clicking on the material, just write down the title of the form. So I'm going to make the grade 4 attendance, so I'm going to write down the title grade 4 attendance. Description is optional, so if you want to write down the description, so you can write, otherwise you cannot. Click on the create button, and after that you are going to click on the form button. So the form is there. Okay, now this is the title of the form, so I am going to write on the same title that it's grade 4 attendance. So after that we are going to write down some questions, the question which we want to ask to the students. The first question is name of student. So against the question you have so many options. यहाँ पे आप लोगों ने रिक्वायर करना है स्टूडेंट का नेम. सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू चूज is a short answer. In the short answer line, student is going to write down his name. But we have so many options: paragraph, multiple choice. But multiple choice या check boxes, ये drop down menu आप student को नहीं provide कर सकते हैं. Why? Because you don't know which student is going to mark the attendance at this time. So short answer option is the best option. So after short answers, click on the required button. Required button means if a student is going to submit this form, तो जब तक वो इस फॉर्म की इस फील्ड को फिलअप नहीं करेगा, he cannot press the submit button. So that's why we are going to click on the required option. So after required, now I am going to have so many options over there. Next question, we want to make a next question, but we are not going to change any option. So we want to make a next question. So for the next question you have option, click on the add question or duplicate this question. If I am going to duplicate, तो वो आपका क्या करेगा, सेम duplicate question आपको लिखा हुआ दे देगा. But we want at this time the class of the student. ये grade 4 की attendance है. If you have sections in grade 4 or any other class, so you can mark over here grade and then you can choose from here checkbox. Okay, now if you have more than one sections, तो आपके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4A 4
B 4 C। सो जितनी भी क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी सेक्शंस अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे MCQs चेक बॉक्स बनाएंगे एंड देन आप इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे एज अ रिक्वायर्ड। वो ऑलरेडी है क्योंकि हमने डुप्लीकेट क्वेश्चन किया था। और इसके साथ हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। टीचर्स, जब भी आप गूगल फॉर्म बनाएंगे इसमें ना तो कोई सेव बटन आपको मिलेगा ना ही कुछ और। वाई? बिकॉज गूगल फॉर्म इज गोइंग टू सेव एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। यू कैन सी ओवर हेयर ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। सो ये सारी चेंजेस जो है वो इसको सेव कर चुका है ऑलरेडी, जैसे ही आपने टाइप करके इसको फिनिश किया। आफ्टर दैट दिस इज द सेटिंग बटन। आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग बटन पे क्लिक करना है तो ये सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएंगी। वाई वी वांट टू चेंज द सेटिंग? क्योंकि नॉर्मली जब बाय डिफ़ॉल्ट आप फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वन पर्सन कैन सबमिट मोर देन वन रिस्पॉन्स। तो हमें उस चीज़ को स्टॉप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द ईमेल एड्रेसेस। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट के ईमेल एड्रेसेस भी कलेक्ट करेगा जब स्टूडेंट इस फॉर्म को सबमिट करेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन इज लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। जब आप इसे वन रिस्पॉन्स पे लिमिट कर देंगे तो एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स को सबमिट नहीं कर सकेगा विद वन गूगल आईडी। जो भी आईडी स्टूडेंट की है वो एक आईडी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स को सबमिट करेगी, नॉट मोर देन वन। सो इसको आप सेव कर दे। बाकी रिमेनिंग सेटिंग आपने कुछ भी नहीं चेंज करना है, इसको एज इट इज आपने सेव कर देना है। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्म जो आपके स्टूडेंट को मिलेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अपना नेम सबमिट करेगा, and section is for B and submit। आप ये देख रहे हैं टॉप पे इसने आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिया था कि किस ईमेल एड्रेस से ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो इस तरह स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस को सबमिट कर दिया। अब जब आपके सामने ये फॉर्म अवेलेबल है और आप इसकी रिस्पॉन्सेस चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ये देखें, जो मैंने अभी रिस्पॉन्स सबमिट किया था तो इसने मुझे ये बताया कि जी इस ईमेल ने सबमिट किया है, स्टूडेंट नेम ये था, स्टूडेंट की जो क्लास थी दैट इज सेक्शन 4B। अब ये तो मैंने खुद ही सबमिट किया है एक रिस्पांस आपको दिखाने के लिए। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे स्टूडेंट इस रिस्पांस को सबमिट करेगा और स्टूडेंट इस आपको बताएगा कि हाउ you can submit the response by the student and after that how you can check the response from the student। ओके टीचर्स, तो मैं इस फॉर्म को कर देता हूँ बंद। आप जब से इस फॉर्म को क्लोज करेंगे ये ऑलरेडी आपको बता रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड एंड ड्राइव, दैट मीन्स नो नीड टू प्रेस द सेव बटन बिकॉज देयर इज नो सेव बटन। ये हमारा गूगल फॉर्म आ रहा है। अब ये है जी 4A के स्टूडेंट्स के लिए, या अगर मोर देन वन क्लासेस में आपने इसे करना है पेस्ट, जैसे हमने 4 के सेक्शंस तमाम सेक्शंस के लिए बना दिया था तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास वाइज भी कर सकते हैं। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओके एंड टॉपिक हमें रिक्वायर नहीं है, सो वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस फॉर्म। अब ये फॉर्म जो है वो स्टूडेंट के अकाउंट पर पोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट की तरफ से आने वाले रिस्पांस का वेट करेंगे एंड देन वी विल चेक हाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिस्पांसेस ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। नाउ टीचर, दिस इज द स्टूडेंट अकाउंट एंड यू कैन सी जो आप लोगों ने एक फॉर्म बनाया था अटेंडेंस फॉर्म, वो यहाँ पे स्टूडेंट के अकाउंट पे पोस्ट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द फॉर्म। अब ये स्टूडेंट के पास एक फॉर्म आ रहा है, स्टूडेंट ने फॉर्म पे क्लिक किया एंड यू कैन सी कि उसने स्टूडेंट का एक ईमेल एड्रेस जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना नेम लिखा, देन उसने सेक्शन प्रेस कर दिया एंड देन सबमिट। अब इस सबमिशन के बाद स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो रिस्पांस जो है वो सबमिट हो चुका है और स्टूडेंट ने, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कि स्टूडेंट अगर दोबारा इस फॉर्म पे क्लिक करेगा तो क्या मैसेज आएगा। यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, दैट मीन्स कि स्टूडेंट एक से ज़्यादा रिस्पांस को सबमिट
नहीं कर सकता। अब हम वापस चलते हैं टीचर अकाउंट पे। तो टीचर अकाउंट पे जाने के बाद अब मैं ये फॉर्म था जो मैंने चेक किया है, पोस्ट किया था टीचर अकाउंट से, और मुझे स्टूडेंट ने एक रिस्पांस सबमिट किया। अब मैंने इस रिस्पांस को चेक कैसे करना है, मैं क्लिक करूंगा, व्यू करूंगा फॉर्म को, वो मुझे कह रहा है जी मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ रिस्पांस। सो जब आप फॉर्म ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रिस्पांस सबमिट किया था, तो इसलिए वो मुझे अब डायरेक्टली फॉर्म नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने फॉर्म पे लिमिट की लगाई थी कि एक यूज़र एक टाइम पे सिर्फ एक रिस्पांस को सबमिट करेगा। अब जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे ना टीचर्स, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये पॉइंटर नज़र आएगा, एडिट दिस फॉर्म। आपने इस पॉइंटर पे क्लिक कर देना है। इस पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद फॉर्म आपके सामने उस कंडीशन में आ गया है जिस कंडीशन में आपने सबमिट किया था, फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। एंड यू कैन चेक ओवर हेयर एट द टॉप कि आपके पास 2 रिस्पॉन्सेज अवेलेबल हैं। एक रिस्पॉन्स तो मैंने सबमिट किया था इसी अकाउंट से, और दूसरा रिस्पॉन्स स्टूडेंट अकाउंट से मैंने सबमिट किया है। तो हमारे पास दोनों रिस्पॉन्सेज अवेलेबल हैं, वन इज़ फ्रॉम द T6 एंड वन इज़ फ्रॉम द S6। अब ये देखें, फर्स्ट ईमेल विद द फर्स्ट नेम, सेकंड ईमेल विद द सेकंड नेम, एंड दोनों स्टूडेंट जो थे वो 4B के थे। डन हो गया। सो यू कैन डाउनलोड दिस फाइल। आप इस फाइल को एज ए एक्सेल स्प्रेडशीट कन्वर्ट करके क्रिएट एन एक्सेल स्प्रेडशीट एंड यू कैन डाउनलोड दिस फाइल इनटू द सिस्टम। सो उसको आप बाद में अपने जिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहें और चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। So this is the way teachers, how you are going to make the attendance form, how students are going to submit the response, and how you are going to check the response submitted by the students. वीडियो पसंद, सो टीचर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।